So friends, we have discussed electric potential in chapter number 2 till now. What we covered is what is electric potential. Then we saw a different formula for potentials of a system of single charge. Sorry, a single charge lying at origin, not at origin. Then we had taken the case of system of particles, electric potential due to a system of particles, discrete charge distribution. Then we talked about continuous charge distribution, and then we took a special case of that spherical shell. After completing electric potential, we went over to equipotential surface and then we related E bar with V, electric field intensity in terms of potential. Now, what we are going to study is, in the second lecture we have mentioned, we have talked regarding electric potential energy. We related it to electric potential. Now, today's lecture is completely dedicated to electric potential energy. In 11th, in chapter number 6, we studied about work, energy and power. In that, the energy part we studied, in which we saw that there are different forms of energy: kinetic energy, potential energy, mechanical energy, and so on. Then in case of potential energy, we focused on the types of potential energy, in which we covered gravitational potential energy and elastic potential energy in 11th standard. Here comes one more potential energy, that is electric potential energy. So it is continuation with chapter number 6 of 11th standard. Secondly, it is a part of electricity, so taken in 12th standard. In chapter number 2, what we discussed was concept of electric potential. From there we move over to electric potential energy. Now just to remind, what was electric potential? Suppose this is a charge plus q, a point charge plus q. Its electric field, it has its own electric field. Now a unit positive charge is placed at infinity. This unit positive charge is brought from infinity to a given point in the electric field. Let's say point P. This unit positive charge is brought from infinity to a given point in the electric field, that's point P. Then work required to move it from here to here against this electric field of this given source charge is called electric potential at that point. Work done per unit charge was defined as potential, and we obtained the formula as kq upon r. ये हमने पहले पढ़ लिया ऑलरेडी. Now उस टाइम पे ये भी डिस्कस किया था कि if this is not unit charge and if it is any charge q lying at infinity, then work required to move this charge q from infinity to a given point in the electric field of the given charge. Once again, work required to move a charge small q from infinity to a given point in the electric field, then that work done will be equal to q into v, potential at that point. And this work done gets stored in the charge in form of potential energy. So this becomes the potential energy. Placing the formula for v here, we get q into kq upon r, means rearranging kqqq upon r. This is the formula for potential energy at a point P in the given electric field. Now here, electric potential energy means what? It is slightly different from potential. Comparing the both, here it was kq upon r, here one more extra small q, one more small extra small q, and this charge value comes. If this charge is taken, this small q is taken as +1 coulomb, then u becomes potential. So if you move a unit positive charge from infinity to a given point, then that's electric potential. And if you move charge q from infinity to a given point, then that's potential energy. So the basic difference between the two is, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो तो +1 कूलम चार्ज को ला रहे हो तो पोटेंशियल, અને કોઈ भी डैम एनी वैल्यू चार्ज q को ला रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी. Okay, and that potential energy is in case of electric field, so it's called electric potential energy. So here we define electric potential energy as work required to move a charge q from infinity to a given point in the electric field is called electric potential energy at that point. Clear? Now potential energy का फॉर्मूला क्या बनता है? U equal to q into v, that is kqqq upon r, or in general we can write it as, इसको अगर q1 बोल देते हैं तो in general we can write as potential energy is given as k q1 q2 upon दोनों के बीच का डिस्टेंस r. यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस q1 and q2 separated by distance r12. So this is the formula for potential energy, electric potential energy of the two charges. Suppose this is q1 and this is q2 and दोनों के बीच का distance r12. Then the system has a potential energy kq1 q2 upon r. Now
This formula and this formula, how do they differ? Here we are defining that Q has its own electric field, and in that electric field we are bringing a charge small q. Here we define two separate charges and उनका उस system का electric potential है. Electric potential is always of a system of two charges. एक तो source charge and दूसरा जो charge को पकड़ के लाए वो. It's always of a system of two charges. तो वही उसको जनरल फॉर्म में ही लिख दिया. ये कब काम आएगा? If there are more than two charges, then what? Suppose Q1, Q2, Q3, Q4. There is a system of four charges. तो इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना? इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो इस सिस्टम का कितने चार्ज है? 1 2 3 एंड 4, चार चार्जेस हैं. हाँ, तो गेट द पोटेंशियल एनर्जी यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ टू and non-repeating combinations of 1 2 3 and 4, and that will form 1 2 1 3 1 4 2 3 2 3 2 4 then 3 4. This possible combinations 1 2 1 3 1 4, then 2 1 करते पर वो तो ऑलरेडी आ गया है, तो 2 3 2 and 2 4, then comes the 3 4. These are the possible combinations. So potential will be total potential of the system of these four charges will be U12 plus U13 plus U14 plus U23 plus U24 plus U34. If you have taken maths, then you will know very well about the combinations. These are non-repeating combinations of two charges. That's how we get it. And हर एक का individual formula go by this way. U12 के लिए K Q1 Q2 अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 प्लस U13 के लिए K Q1 Q3, 1 and 3 है ना, तो 1 3 अपन डिस्टेंस 1 and 3, फिर 1 4 है तो K Q1 Q4 अपन R14 एंड सो ऑन. हाँ, अगर मान लो ये डिस्टेंस नहीं दिया, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया, सपोज इसका R1 बार दिया पोजीशन वेक्टर एंड इसका R2 बार दिया, हमें चाहिए इनके बीच का डिस्टेंस R12. तो क्या करेंगे? अगर वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर्स दिए हो तो it's not a bad, nothing new. You have learned the distance formula, so you can do it this way. K Q1 Q2 upon R12 को क्या लिखेंगे? Mod of R2 bar minus R1 bar. Displacement vector का magnitude, that's the distance between the two. हमने चैप्टर नंबर 3 11th स्टैंडर्ड में सीखा वो ऑलरेडी, हाउ टू गेट डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट में से फिर मैग्नीट्यूड उसका इनर डिस्टेंस हो जाएगा. Okay, so you can go by this way also if position vectors are given. हर एक में आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं. So this is a case of potentiality, what it is compared to potential, then the formula for potentiality of a charge coming in the given electric field. बराबर, उसको यहाँ ले लिया हमने. फिर इन जनरल कोई भी दो चार्ज का सिस्टम बने तो उस सिस्टम के लिए पोटेंशियलिटी का क्या, एंड मोर देन टू चार्जेस का सिस्टम होवे तो उस सिस्टम का पोटेंशियलिटी क्या. So now going ahead with concept of potential energy. हमने क्या देखा अभी तक? Potential energy is Q into E, दूसरा फॉर्मूला K Q Q upon R, तीसरा फॉर्मूला K Q1 Q2 upon distance in the two, दो चार्जेस वाले सिस्टम का, एंड उसका अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो ये. अगर मान लो इसके बदले इफ आई राइट R1 बार माइनस R2 बार mod, does it make any difference? Obviously you will say no, not at all. बिल्कुल सही है. आप R2 बार माइनस R1 बार लिखो या R1 बार माइनस R2, वेक्टर फॉर्म में अलग है पर मैग्नीट्यूड तो सेम, बराबर. इसलिए R2 बार माइनस R1 बार लिखो या R1 बार माइनस R2 बार, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो डोंट वरी अबाउट दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ फर्दर रिगार्डिंग दिस, सपोज देयर इज अ चार्ज Q1 एंड कोई एक चार्ज Q2 है जो इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है, Q2 प्रेजेंट इंफिनिटी. इसको पकड़ के यहाँ पे लाए, कहाँ पे लाए? एट अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर लेट्स से R1 बार, यहाँ पे है इस Q1 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर है ये R1 बार कहाँ पे है? विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1 एट ओरिजिन. अगर ऐसा सिचुएशन हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा सिस्टम का? तो सिस्टम का पोटेंशियल यानी कि वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम हियर टू हियर, W विल बी इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल Q1 इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट R1 बार. सॉरी, किसको पकड़ के लाए? Q2 को, तो Q2 इनटू पोटेंशियल वेक्टर एट पॉइंट R1 बार. तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल एट दिस पोजीशन इनटू चार्ज Q2 को पकड़ के लाएगा. ये पोटेंशियल का फॉर्मूला नो डाउट Q1 से मिलेगा, पर ये आएगा फॉर्मूला. अगर मान लो इसको पकड़ के कोई और पोजीशन Q पे लाते हैं विच इज हैविंग पोटेंशियल, सॉरी Q पे विच इज हैविंग पोजीशन वेक्टर R2 बार,
तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, Q2 इंटू वी एट R2 बार, यानी जहां पर लाते हैं उस पोजिशन का पोटेंशियल लेना है। ओके, सो दैट्स द केस। अब यहाँ पे Q2 चार्ज को पकड़ के लाए, ये हो गया वर्क डन, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। ओके, अगर सपोज ये Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और कोई और केस है, ये तो कैसा हो गया, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लेके आए हैं। इफ सपोज देयर इज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर Q1 को भी लाते हैं, Q2 को भी लाते हैं, खाली Q2 नहीं, ये तो शायद सिंगल चार्ज आ रहा है। अगर मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसके अंदर पहले किसी चार्ज Q1 को लेकर आते हैं, तो फॉर चार्ज Q1 कितना आएगा पोटेंशियल, U1 विल बी इक्वल टू Q1 इंटू पोटेंशियल एट पोजिशन R1 बार, यानी कि Q1 को पकड़ के किसी एक पॉइंट P पे जिसका पोजिशन R1 बार है वहां पे लेके Q1 को इन्फिनिटी से। ओके, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है। फिर मान लो दूसरे किसी चार्ज Q2 को पकड़ के लाते हैं, कहां पे, एट पोजिशन एट पॉइंट Q हैविंग पोजिशन R2 बार, तो Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उस केस में पोटेंशियल बन जाएगी, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, दैट विल बी, एक तो इसको उठा के यहाँ पे लाए Q2 इंटू पोटेंशियल एट पोजिशन R2 बार, ये तो है। ओके, ये क्या हुआ, इसको इंडिपेंडेंटली उठा के यहाँ लाए इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, पोटेंशियल एट पॉइंट R2 इज VR2 बार, एज वेल एज ये जब यहाँ पे आ रहा है तब एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की, इससे Q1 के कारण भी वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R1। डिड यू गेट द पॉइंट, यानी कि अगर Q1 को लाए पहले, तो पहले Q1 आया तो इतना ही वर्क डन रिक्वायर्ड, फिर बाद में Q2 को ला रहे हैं, क्या है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है प्लस Q1 भी है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल के लिए ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, साथ में Q2 भी Q1 भी है, तो उसके लिए वर्क डन एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड दूसरा इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ Q1। तो ये हो गया टोटल वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव चार्ज Q2 from infinity to a given point in the already existing electric field where already charge Q1 is also present at point P। अब टोटल वर्क डन कितना हुआ इस सिस्टम को फॉर्म करने का, यानी टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ Q1 एंड Q2 हियर इन द गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से एक बार, टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ Q1 एंड Q2 इन अ गिवन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल वर्क डन यानी कि टोटल पोटेंशियल कितना, U1 प्लस U2, तो दैट विल बी Q1 इंटू V एट पोजिशन R1 बार, यानी Q1 को पहले यहाँ पर लाए, पहले Q1 को लाए, फिर दूसरा Q2 को लाए, तो Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट R2 बार, पोजिशन R2 बार, प्लस इन दोनों के कारण जो बनता है वो Q1 Q2 अपॉन R12। यानी इसको कैसे सोचने का, हाउ टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैं तो टोटल पोटेंशियल कैसे गिनने का, पहले पार्टिकल को लेके आओ उसका एनर्जी, उसका वर्क डन, फिर दूसरे को लेके आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन एज वेल एज दोनों के सिस्टम का वर्क डन, सो दैट मेक्स द टोटल पोटेंशियल। अगर मान लो तीसरा लाना हो तो आप समझ सकते हो, तीसरा लाइन यहाँ पे तो क्या होगा, तो इसके साथ में कुछ टर्म्स ऐड होंगे, कौन सा टर्म ऐड होंगे, पहले तो तीसरे को पकड़ के लाए उस पोजीशन पे, बराबर है, फिर 1 2 एंड 1 3 दो बनेंगे जोड़ियां, तो U12 एंड दूसरा U13 फॉर्मूला ऐड हो जाएंगे। इज इट क्लियर, दिस हाउ वी डू इट, यानी इन तीन के साथ प्लस याद आएगा अगर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल Q3 भी आ रहा है किसी एक पोजीशन R पे हैविंग पोजीशन R3 पर। इज इट क्लियर हाउ टू कैलकुलेट, तो एक तो ये हो गया सिंगल चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लाने का, एंड ऑलरेडी प्रेजेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऑलरेडी प्रेजेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सिस्टम फॉर्म करना है 1 2 और 3 का या 1 का, खाली पहले 1 को लाओ उसका वर्क डन, 2 को लाने में 2 को लाने का वर्क डन एज वेल एज 1 के साथ का उसका पोटेंशियल, 3 को ला रहे हो तो 3 को लाने में वर्क डन, ये तो है 3 को लाने में वर्क डन प्लस U12 प्लस U13। क्लियर, अगर तीनों का सिस्टम फॉर्म कर रहे हो तो 1 का वर्क डन, सेकंड का वर्क डन एंड ये थर्ड का वर्क डन, एंड सो ऑन सिस्टम चार्ज ऐड करते जाओ, यू विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स। पर हम 12th के लेवल पे वी गो अप टू दिस ओनली, नॉट बियॉन्ड दैट। इतना बेसिक आइडिया दिमाग में डाल दो कि हाउ टू फाइंड द वर्क टोटल पोटेंशियल, यानी कि टोटल वर्क डन टू मूव टू फॉर्म अ सिस्टम इन अ गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मैं एक स्पेशल केस लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का।
So coming to electric dipole plays in uniform electric field. We have an electric dipole plays in a uniform electric field. अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा फाइंड करना है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या होता है, वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1 व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड मेक्स द डायपोल टू रोटेट एंड ब्रिंग्स इट इन सच अ वे दैट P bar becomes parallel to E bar. याद है नहीं तो चैप्टर नंबर 1 में क्या हुआ है, a very important topic. When a dipole is placed at some angle in an electric field, uniform electric field, the torque acts on it and the dipole rotates till E bar becomes parallel to E bar. Till P bar becomes parallel to E bar. ये उसका स्टेबल मोस्ट पोजीशन है, बराबर है, ऐसे आ जाएगा. तो अभी इसी के बारे में हमें बात करना है. How much is the work done to move it from here to here? Who does the work? It's the electric field who does the work. It's the electric field which does the work on the dipole to rotate it from here to here. And you have to find out that work done. Now, work done का फॉर्मूला रोटेशन मोशन में क्या था, तो याद करें. वर्क डन इक्वल टू, अच्छा इन we know that work done equal to F bar dot D bar. चैप्टर नंबर 6 11 लीनियर मोशन में. फिर अगर वेरिंग फील्ड हो तो, अगर वेरिंग फोर्स हो तो F bar dot dx bar. इसी का इक्विवेलेंट हमने चैप्टर नंबर 7 रोटेशन मोशन में पढ़ा था. फोर्स के जगह आ जाएगा टॉर्क और dx में आ जाएगा d थीटा बार. अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं लेते हम लोग, सिंपली वी टेक टाउ इनटू d थीटा. सो वर्क डन इन दिस केस टू रोटेट द डायपोल विल बी इंटीग्रेशन टाउ इनटू d थीटा. अब कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम एंगल थीटा तो पैरेलल हो जाएगा, मतलब एंगल 0, फ्रॉम थीटा टू 0 स्टेबल फॉर्म में. ओके, नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर अ डायपोल एक्सिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन एज P बार क्रॉस E बार. चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रूव किया था. इसका मैग्नीट्यूड PE sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू. P बार डायपोल मोमेंट, E बार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा एंगल बिटवीन द टू. So tau equal to PE sin theta. Putting it here, integration PE sin theta d theta from from theta to 0. Is it clear? Now P and E being constant during the rotation, dipole moment change नहीं होगा, as well as electric field change नहीं होने वाला है. तो PE बाहर आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए. इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा टू 0. अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा, पर इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, नेगेटिव कॉस थीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू PE into negative cos theta from theta to 0. Okay, so putting up the upper limit minus lower limit, so P into negative cos of 0 minus negative cos of theta. Okay, so this will be PE cos 0 is 1 minus plus cos theta. So this will be equal to PE cos theta minus 1. ये हो गया वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम थीटा एंगल टू पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन जनरल क्या लिखेंगे फॉर्मूला, इसको ध्यान में लेकर बात करें तो वर्क डन इक्वल टू PE P cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2. ये थीटा 1 था ना, ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2. Okay, this is a general formula for work done. Now, this work done gets stored in form of potentiality. So, if we rotate from any angle theta 1 to angle theta 2, then this is the situation. Potentiality can be written as, now, normally हम लोग initial point क्या लेते हैं? Usually, we take theta 1 as 90 degree. यानी कि डायपोल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फिर रोटेशन क्रिएट करते हैं. तो टेकिंग रेफरेंस पॉइंट थीटा 1 इज 90 डिग्री, so therefore cos theta will come out to be, cos theta will be 0. So in that case work done will be minus P cos theta. यानी कि 90 डिग्री एंगल से थीटा एंगल तक you'll get this formula and this work done gets stored in form of potentiality and it will be minus P cos theta. That is minus P bar dot E bar. Potentiality of a dipole at an angle theta minus P cos theta or P bar dot E bar. You can take this formula. अब
इसको एंड टॉर्क के फॉर्मूला को कंपेयर करो तो यू कैन से टॉर्क इज पी बार क्रॉस ई बार वेयर पोटेंशियल इज पी बार डॉट ई बार विद अ नेगेटिव साइन. ओके, इज दिस डेरिवेशन क्लियर? बी ग्रुप वाले खास रेफरेंस के लिए लिख देना साइड में ताकि तुम्हें याद रहे हाउ दिस कम्स फ्रॉम हियर टू हियर दिस टर्म. इसके बाद में कहीं पे नोट कर लेना है. So for an electric dipole, we got the formula of potential as negative p bar dot e bar, that is minus p cos theta. अब जब भी थीटा है तो उसके केसेस तो बनते ही हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद केसेस. पहला केस तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लो, यानी कि दैट इज p बार इज पैरेलल टू e बार. यानी सिचुएशन ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ इंटेंसिटी e बार एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू एंड ये p बार डायपोल मोमेंट. Dipole is arranged in such a way that dipole moment is parallel to electric field. तो theta 0 है तो therefore cos theta will be equal to 1 and therefore potentially in this case will be negative p. इसको 1 लिया तो negative p है. Okay, केस कौन सा? theta equal to 0 वाला. Then we take the second case. Second case में ले रहे हैं हम लोग theta equal to 90 डिग्री. यानी कैसा केस हो गया ये p बार इज परपेंडिकुलर टू ई बार. मतलब कैसा दिखेगा यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई बार, उसके अंदर ये डायपोल प्लेस परपेंडिकुलर नेगेटिव पी क्यू, पॉजिटिव क्यू, ये हो गया पी बार का डायरेक्शन. तो पी बार इज परपेंडिकुलर टू ई बार. ना इस केस में थीटा इज 90 डिग्री, देयरफॉर cos थीटा विल बी 0 एंड देयरफॉर पोटेंशियल विल बी 0. तुम बोलोगे पोटेंशियल 0 हो गया सर, सही है, ये तो स्टेबल फॉर्म हो गया. ठीक है, चलो देखते हैं केस नंबर 3. थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इज, ये कौन सा केस हो गया? थीटा इज 180 डिग्री मतलब ये 0 से उल्टा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा, उसमें डायपोल प्लेस इन सच वे नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये ऑपोजिट टू ई बार, पी बार इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई बार. देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री के तो -1 होता है. cos थीटा फॉर 180 डिग्री -1 and therefore potentiality will be p. तीनों को कंपेयर करें तो नेगेटिव p, 0 एंड p, तीनों केस थीटा इक्वल टू 0 पे नेगेटिव p, थीटा इक्वल टू 90 पे 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे p. तीनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? फिर से लिख देता हूं यहाँ पे नेगेटिव p, 0 एंड p. विच इज द लोएस्ट वैल्यू? ऑब्वियसली दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 इज द लोएस्ट वैल्यू. एंड 11 में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियलिटी जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी. तो लोअर इज द पोटेंशियलिटी, लोअर द पोटेंशियलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी. तीनों में देखो तो सबसे कम कहां पे आता है? थीटा इक्वल टू 0 पे. तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट. यानी कि डायपोल का स्टेबल मोस्ट स्टेट कौन सा? व्हेन p बार इज पैरेलल टू e बार. इसलिए हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स द डायपोल टिल p बार बिकम्स पैरेलल टू e बार. द रीजन इज पोटेंशियल इज मिनिमम and therefore it's a stable most state. Okay, तुम बोलोगे सर ये 0 नहीं, 0 से नेगेटिव भी स्मॉलर वैल्यू ना, इसलिए वो लोअर मोस्ट वैल्यू रहेगा. सो वी फाइंड दैट डायपोल, एक तो हमने प्रूव किया था फर्स्ट चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स द डायपोल टिल इट बिकम्स पैरेलल टू p बार बिकम्स पैरेलल टू e बार एंड दैट इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ डायपोल. यहाँ पे उसका प्रूफ आ गया कि दिस इज अ सिचुएशन इन व्हिच पोटेंशियल इज मिनिमम हैज द डायपोल इज हैविंग द स्टेबल मोस्ट स्टेट. तो डायपोल को अगर छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. I'll try to align itself parallel to electric field in order to get the stable most position. अब ये कैसे अलाइनमेंट हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया एंड इट रोटेटेड एंड सो यू गेट द पोटेंशियल एनर्जी. अब ये डायपोल का हमने पोटेंशियल एनर्जी आगे ऑब्टेन किया यूजिंग टॉर्क का फार्मूला इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा. देयर इज अनदर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल. एक अल्टरनेट मेथड भी है, हमारी बुक ने उसको दिया हुआ है, जस्ट वेरी शॉर्ट में दिया, 2 या 3 लाइन में, पर हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे आता है. आई जस्ट गिव द आउटलाइन एंड यू इमीडिएटली एबल टू अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ. ये मैंने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है अल्टरनेट मेथड. अल्टरनेट मेथड में क्या सोचेंगे, एक प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज Q1 को लाना है एंड फिर Q2 को लाना है. हमारे पास चार्ज कौन Q1 है प्लस Q एंड Q2 कौन है नेगेटिव Q. इन दोनों को एक के बाद एक पकड़ के लाना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो आगे हमने पढ़ा था कि अगर किसी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में
सिस्टम ऑफ टू चार्जेस करना हो तो पहले को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, फिर दूसरे को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, प्लस इन दोनों के प्रेजेंस की पोटेंशियल R1 2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो तो हमें मालूम है 2 है, टोटल मार दो, ये नेगेटिव है तो माइनस होगा, टोटल मार दो, ये करता आंसर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 में दी। मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा, लीव इट ऑन यू, क्योंकि हमने आगे मेथड देख लिया एंड यहाँ पे उसका एप्लीकेशन भी आ गया। नाउ दिस कंप्लीट्स द पोटेंशियलिटी सेक्शन ऑफ द चैप्टर। पोटेंशियलिटी के सारे केसेस खत्म हो गए एंड इवन पार्ट ऑफ वन ऑफ द चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओवर। हाँ, याद होगा आपको, मैंने बताया था पहले चैप्टर में दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दूसरा कैपेसिटेंस का। सो वी फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and with this we finish all the basic properties of a stationary charge। स्टैटिक चार्ज के जो भी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म कर दी। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यूड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूड है, बट अब जो बात करेंगे वो स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगले 4 5 या 6 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं नोट्स में, प्लीज गो थ्रू देम, दीज आर ऑल थियरी बेस्ड। तो अगला जो पार्ट होगा थियरी बेस्ड है कंप्लीटली, बराबर है, तो उसको पहले पढ़ लेना लेक्चर अटेंड करने से पहले। सो दैट्स ऑल।